Good morning. Gyan Niketan online class, and I am Savita Prasad. Today I am teaching physics in class 10 of class 10. Already in previous class we study about the Ohm's law and parallel and series circuit. After Ohm's law, we at the end of this chapter, first chapter, we study about the effect of current. Effect of current, chemical effect, you already know about in chemistry, electrolysis, electroplating, any object when covered by duplicate metal cover, then we use electroplating, electrolysis, ionization. You study in chemistry also, and Joule's law of heating effect. By Ohm's law, we study, we find the formula E equal to I square RT. Joule's also explained this by as a heating effect. When current flows through the circuit and heat produced, that heat energy is directly proportional to the square of current. That is the first law. When resistance and time constant, heat is directly proportional to resistance. When current and time constant, and heat is directly proportional to time if current and resistance constant. These three laws combine together, and finally we get H equal to I square RT. That is the formula for heating effect. You studied previously. Now our second chapter is effect of current. Started with the magnetic effect. Magnetic effect, when current passes, magnetic field created, that was first observed by the Oersted. Oersted done the practical with the circuit and keeping a magnetic needle there, and he found that magnetic needle deflected when current passes through the circuit at a glance, and in switch on, then that conductor, let this one is the conductor connected with the battery and rheostat, then key, this circuit, and magnetic needle kept there, this circuit, and magnetic needle is kept here. South to north current is flowing. He finds that north pole of the magnetic needle deflected towards west, and this gives an idea that current is flowing and magnetic needle deflected, means there is a magnetic field. Why this deflected? And then he changes the direction of current. He changed the direction of current, and find deflection is also changed in opposite direction. Again, he done the experiment by keeping the magnetic needle above of the conductor, and then done the practical. He found in each case the deflection of the magnetic needle changes as we keeping the first one. For this, we apply a trick, Snow. Snow is the trick. When current flowing south to north over the magnetic needle, then north pole of the magnetic needle deflected towards west. You can understand? अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है? वेस्ट की ओर। इसका मतलब है कि वेस्ट की ओर साउथ पोल क्रिएट हो रहा है, तभी तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। सो
north to south over the magnetic needle, then he found the magnetic net north pole of the magnetic needle deflected towards east. This given कि इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मैग्नेटिक नीडल का भी डायरेक्शन चेंज कर दिया और दैट गिव एन आइडिया कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में क्रिएट हो रहा है, यानी करंट अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। Ampere given about this by the swimming law. When we float, then current passes from left to head, south to north. Then left hand shows the deflection of the magnetic needle, north pole of the magnetic needle. Means again आप देखिए, अगर हमारा ये साउथ है, ये नॉर्थ है और हम इस तरह से तैरेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आपका साउथ दिस साइड है तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर और साउथ टू नॉर्थ ऐसा करंट फ्लो करेंगे लेग टू हेड। तो आपका क्या हो रहा है, देखिए स्विमिंग कर रहे हैं हम, हमारे लेग से हेड की ओर से करंट जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव आपका इधर है, नेगेटिव हमारे सर पे है और आपका ये लेफ्ट हैंड है, उस साइड से आपका मैग्नेटिक नीडल है, यानी देख लो अपने आप आ जाएगा कि वेस्ट की ओर आपका नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा डिफ्लेक्शन जो आपका इन्होंने जो स्नो से कहा था साउथ टू नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक, एम्पियर्स ने भी वही किया, एम्पियर्स लॉ भी वही डिफाइन किया। तो यहाँ तक तो चला कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में है, लेकिन फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और किया। अब क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को कंडक्टर के ऊपर रख दिया साउथ टू नॉर्थ। जब साउथ टू नॉर्थ अंडर द मैग्नेटिक नीडल किया तो उन्होंने देखा क्या कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ऊपर में, नीचे में तो वेस्ट जा रहा था, ऊपर में ईस्ट जा रहा था। और अगेन नॉर्थ टू साउथ किया अंडर द मैग्नेटिक नीडल देन वेस्ट, यानी कि नॉर्थ टू साउथ ओवर द मैग्नेटिक नीडल ईस्ट। और तब लोगों को कहा कि भाई परपेंडिकुलर पॉइंट तो ऊपर और नीचे तो एक ही होना चाहिए था, तब कैसा है? तब उसी समय मैक्सवेल ने दिया राइट हैंड थंब और उन्होंने कहा कि व्हेन करंट फ्लोइंग, इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं और कॉर्क स्प्रिंग लॉ ऑफ मैक्सवेल कॉर्क स्प्रिंग लॉ भी कहते हैं। When current flowing in the direction of thumb, then other fingers shows the direction of the lines of force. और ये उन्होंने कहा कि अगर कंडक्टर के चारों ओर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होंगे और इस तरह से सर्कुलर। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हुआ। तो देखो बेटा, आप लोगों को जानना होगा कि अगर यहाँ पे ये कंडक्टर है और कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ हम ऐसे रखते हैं, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, ये इधर क्या कर रहा है, वेस्ट की ओर, यानी कि इस साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर नॉर्थ टू साउथ करते हैं तो उस साइड, यानी कि ईस्ट की ओर। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों का शो कर रहा है। अब जरा सा देखेंगे कि साउथ टू नॉर्थ जब मैग्नेटिक तो ऊपर क्यों चेंज करता है। अब लाइंस ऑफ फोर्स जब सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से निकल रहा है तो लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो, तो तुम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है नॉर्थ पोल से और इंटर करता है साउथ पोल से। तो मान लीजिए कि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है, यानी कि जहाँ से फिंगर निकलता है ना, वो वहाँ से कहते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल। तो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रहा है, मान लो साउथ टू नॉर्थ ऐसे करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरह से तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल क्रिएट हुआ। यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, फिर यहाँ से इंटर कर रहा है यहाँ पे साउथ पोल, और फिर यहाँ से निकल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को करंट का डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलर ऑर्बिट में नीचे और ऊपर अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स जिस प्लेन से निकलेगा वहाँ पे नॉर्थ पोल और जिस प्लेन से इंटर करेगा वहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है। और इस तरह से आपका ऑरस्टेड ने जो दिया उससे एम्पियर ने भी अपना स्विमिंग लॉ दिया और फाइनली मैक्सवेल ने कॉर्कस्क्यू लॉ और राइट हैंड थंब रूल दिया। ये हमारा आज का क्लास हुआ। इसके बाद तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ना है। थैंक यू, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट क्लास वी मीट।